yourself in any meditative posture. Back, chin straight, parallel to the ground. Eyes closed. Focus on your breathing with a nice smile on your face. A long deep breath. We'll chant 3 omkars. Inhale. Inhale. प्रार्थना के लिए रेडी हो जाएंगे। हाथ नमस्ते में, आत्मांजलि मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Let's go down. Namaste. Rub your palms and warm your eyes. Slow. Deep. Open your eyes. Look to the left, to the center, right, center, left, center, right, center, left down, right down, left down, right down. Into your chest, forward bending. गर्दन को ऊपर की ओर खींच के 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ and one full neck rotation. एकदम slow लेना है, half rotation. You will take a deep breath and half rotation you'll breathe out. So आराम से, एकदम आराम से. Let me see your neck rotation. And let's stand up. आराम से, nicely, थोड़ा सा stretching up. हाथों को थोड़ा ऊपर की ओर खींचेंगे. Stretch up, up on your toes. For you, आराम से, and relax. Once again, stretch yourself up. अच्छे से enjoy the stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and release. थोड़ा सा धीरे से. अभी सिर्फ हाथों को ऊपर करेंगे, पैर नीचे ही रहेंगे. Bend on your right, lateral bending to the center. On your left, to the center, right, center, left, center, and side twist ले लेंगे. Nice. On your side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
कमर को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और पीछे की ओर थोड़ा सा, जितना आपसे होता है उतना कमर को खोलेंगे, सामने की ओर, नीचे की ओर, आराम से जितना आपसे होता है उतना. Feel the stretch in your hamstrings, nice and easy. And up, थोड़ा सा कमर को चारों दिशा में घुमा लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. And once again, backward stretch and forward stretch and stay over there. Enjoy the stretch. अच्छे से खिंचाव को महसूस करते हुए. Take a deep breath and come up. Let's get ready. Heart namaste mein. Breathe in, breathe out. Let's begin. Om Mitraaya Namaha. Breathe in, stretch back. Breathe out, down. Right leg goes back into Namaskar. Remember, this is the extra step. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधा नीचे जा सकते हैं. Going down into a plank. धीरे से knees chin chest to the floor, coming up to Bhujan and to downward facing dog. Hold on 1, hold on 2, hold on 3, hold on 4, hold on 5. Right leg comes in between your hands, Asvasanchalan. Left leg comes in between your hands, Suptanasana and Namaskar. Breathe out. 3 लंबी गहरी सांस लेंगे. आराम से breathe in, breathe out. Nice and easy. Om Suryaya Namaha. Breathe in, stretch back. Breathe out, touching the ground. Left leg goes back. आराम से नमस्कार. थोड़ा सा बैक आर्च करने की कोशिश करेंगे. धीरे से अस्वसंचलन and then going into a plank. Nicely enjoy the plank. Knees chin chest to the floor. Coming up to Bhujan. धीरे से Parvatasana. Left leg comes in between your hands. आराम से lift up to the sky. Right leg comes in between your hands. Upar and Namaskar. हमेशा शुरुआत करनी है, बीच में फास्ट करेंगे और लास्ट में एकदम स्लो कर देंगे. ओम खगाय नमः. Stretch back, breathe out, down. Right leg goes back. आराम से नमस्कार. Down into plank. Knees chin chest or coming up to Bhujan. You can see Parvatasana. 5 deep breath. 2, 3, 4, 5. Right leg comes in between your hands. Left leg comes in between your hands. Fast. Long deep breath. Breathe out 1, 2, 3. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Stretch back. Breathe out,
down. Left leg goes back. Aram se, maintaining your balance. Aram se. Say into a plank. Knees touch to the floor. Coming up to pujan. Downward facing dog. 5 counts hold करेंगे. जिनकी हिल्स नीचे नहीं टच होती है वो लोग साइकिलिंग ले सकते हैं हिल्स का अप एंड डाउन. धीरे से लेफ्ट लेग, right leg comes in between your hands. सांस लेते हुए से breathe in, breathe out. 1, breathe in, breathe out. 2, breathe in, breathe out. 3. Om Adityay Namaha. Breathe in, stretch back, breathe out, down. Right leg goes back nicely. जिनको नीचे रख के अंजनी आसन लेना है वो लोग नीचे रख के भी अंजनी आसन ले सकते हैं. And going into a plank. Coming up to Bhujan. Parvatasan. Hold on to 3, 4, 5. Right leg comes in between your hands. Left leg comes up. And Namaskar. लंबी गहरी सांस. ओम भास्कराय नमः. Breathe out. Left leg goes back. Anjani Asan. धीरे से. Right leg goes back into a plank. The floor. Coming up to Bhujan. Into Parvatasan. Hold on to 3, 4, 5. Left leg comes in between your hands. Right leg comes in between your hands. Long deep breath. Om Rave Namaha. Breathe in, stretch back. Breathe out, down. Right leg goes back into Anjani Asan. Say, left leg goes back into a plank. Just up to Bhujan. Say, Parvatasan. 5 deep breaths. 2, 3, 4, 5. Right leg comes in between your hands. Left leg comes forward. सांस लेते हुए वस्तुतनासन. नमस्कार समस्ते. ओम भानवे नमः. Breathe in, breathe out, down. Left leg goes back into Anjani Asan. Right leg goes back into a plank. Parvatasan. Left leg comes in your hand. Right leg comes forward. And namaskar. Very long deep breath. All doing perfect. Okay. Any problem? We have completed our 8 over here. If you need to have a break, then go. Nahi to just take 3 deep breaths and we'll start with the next one. बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिएगा. Just 2 sips of water. Dakshati, can you please try to mute yourself? Okay, no issue. That's fine. Yeah. So
I think everyone is ready. We don't want to have a lot of pull down, just a short break. तो बहुत बैठना नहीं है. चलिए चलिए खड़े हो जाते हैं. Over to you, Chetna. Ready, Chetna? Can you just speak a word? Yes, yes. Yes. Okay. Let's begin. Om Mitraya Namah. Raise your hand up, arch back, exhaling all the way down, Hastapadasana. Take your right leg back, Aswasanchalanasana. Left leg back into a plank, knee, chest, chin on the ground. Slide up into the bhujang. Exhaling, Adho Mukho Svanasana. Right leg in front, Aswasanchalanasana. Left leg in front, Hastapadasana. All the way up, Hastottanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Om Suryaya Namaha. Inhaling, take your hands up, Hastottanasana. Exhaling all the way down, Hastapadasana. Left leg goes back, Aswasanchalanasana. Right leg goes back into a plank. Knee, chest, chin on ground. Slide up into the bhuja. Exhale. Adho Mukho Svanasana. Take your left leg in front, right leg in front. Inhale all the way up, Asuttanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Om Khagaya Namaha. Raise your both hands up, inhale, exhale all the way down, Hastapadasana. Inhaling, take your right leg back, Aswasanchalanasana. Exhale, take your left leg back into a plank, knee, chest, chin on ground. Slide up into the bhujang. Exhale, Adho Mukho Svanasana. Take your right leg in front, left leg in front. Inhaling, come all the way up into Hastottanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Om Hiranyagarbhaya Namah. Raise your both hands up. Inhale, exhaling all the way down. Hastapadasana. Take your left leg back. Aswasanchalanasana. Right leg back into a plank. Knee, chest, chin on ground. Inhaling, slide up into the puja. Exhaling, Adho Mukho Svanasana. Take your left leg in front, Aswasanchalanasana. And inhale, right leg in front, Hastapadasana. Come all the way up, Hastottanasana. Exhale, Sthita Prajnasana. Om Adityaya Namaha. Inhale, take your both hands up into Hastottanasana. Exhaling, both hands down into a Hastapadasana. Right leg goes back, Aswasanchalanasana. Left leg goes back into a plank. Knee, chest, chin on ground. Slide up into the bhujang. Exhaling into Adho Mukho Svanasana. Right leg in front, left leg in front. Inhaling all the way up into Hastapadasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale, take your both hands up, Hastottanasana. Exhaling, fold forward all the way down, Hastapadasana. Take your left leg back, Aswasanchalanasana. Exhaling, right leg back into a plank, knee, chest, chin on ground. Slide up into bhuja. Exhale, Adho Mukho Svanasana. Inhale, take your left leg in front. Exhale, take your right leg in front. Inhale all the way up into
Hastottanasana. Exhale. Stitaprajnasana. Om Nave Namaha. Raise your both hand up. Inhale. Hastottanasana. Exhale all the way down. Hastapadasana. Right leg goes back. Aswasanchalanasana. Left leg goes back into a plank. Knee, chest, chin on ground. Slide up into bhujang. Exhale. Adho Mukha Svanasana. Right leg in front. Aswasanchalanasana. Left leg in front. Hastapadasana. Come inhaling all the way up into Hastottanasana. Exhaling Stiratanasana. Om Dhanavaya Namaha. Inhale, take your both hands up, arch your back, Hastottanasana. Exhale, forward fold, Hastapadasana. Left leg goes back, Aswasanchalanasana. Exhaling, right leg goes back into a plank, knee, chest chin on ground, slide up into a push-up. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Inhaling, left leg in the front. Exhaling, right leg in front. Hastapadasana. Inhaling all the way up into Hastapadasana. Exhaling, Stiratanasana. Catch your breath, inhale and exhale. Over to you, Neetal. Thank you. Please mute yourself, Chetna. And let's go with our express train now, friends. Ready? जिनका होता है वो लोग जंप करेंगे, जिनका नहीं होता है वो लोग नॉर्मल क्लासिकल ही लेंगे, ठीक है? So now going forward, hands in namaste. Om Pushne Namaha. Breathe in, stretch back, breathe out. Touch the floor, jump into a plank, knees chin, chest to the floor. Coming to Bhujan, coming to Adho Mukha Savasana. Jump back in between your hands, coming up and Namaste. Om Mariche Namaha. Breathe in up. Breathe out, down, jump back, knees chin, chest to the floor, coming up, going into Adho Mukha Savasana, jump back, breathe in, up, and breathe out, Namaste. Om Arkai Namaha, breathe in, Hastottanasana, breathe out, Hastapadasana, jump back, knees chin, chest to the floor, Bhujan, Adho Mukha Savasana. Jump in between your hands, coming up into Hastottanasana and Namaskar. Om Savitre Namaha. Breathe in, backward arch, breathe out, forward arch, plank, knees, chin, chest to the floor, coming up to Bhujan, into a downward facing dog. Jump in between your hands, coming up and Namaskar. Elongate breath. Last one, holding each posture for 10 counts. Om Suryaya Namaha. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Hastottanasana. Om Mitraya Namaha. 1, 2, 3. सांस को रोकना नहीं है, सांस अंदर बाहर होगी. पोस्चर को इंप्रूव करना है. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Going down into Hastapadasana. Om Khagaya Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 and 10. Right leg goes back into Asva Sanchalan, looking towards the sky. Om Hiranyagarbhai Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Into a plank. Om Adityay Namaha. Tummy tight. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Knees chin just to the floor. Om Bhaskaraya Namaha. You can stay in this posture for a few seconds and stand up to puja. Om Rave Namaha. Up and down. 1. Upper breathe in, niche breathe out. 2. Upper breathe in, niche breathe out. 3. Upper breathe in, niche breathe out. 4. Upper breathe in, niche breathe out. 5. Upper breathe in, niche breathe out. 6. Upper breathe in, niche breathe out. 7. Upper breathe in, look towards your left, look towards your right, left, right, down, into Bhujang and into Parvatasana. Om Bhanve Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Right leg comes in between your hands. Om Pushne Namaha. Try to improve your posture. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Left leg comes in between your hands. Hastapadasana. फॉरवर्ड बैंड जितना हो सके उतना घुटने को सीधा करके करने की कोशिश करेंगे. नहीं होता है तो थोड़ा सा बैंड रखिए. नो इश्यूज. ओम मरीचे नमः. 2, 3, 4. Try to lift your glute muscles up. सांस लेते रहना है, सांस मत रोकिए. 6, 7, 8, 9 and 10. Hands up. into Hasuttanasana. नमस्कार. ऊपर नमस्कार रखना है. ओम आदित्याय नमः. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. into समस्थिति. थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग, झुक के. ओम सवितृ सूर्य नारायणाय नमः. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And with this we have completed our 21 Surya Namaskar of today. Congratulations. And into Savasana. Enjoying our Savasana. Breathe in and breathe out. Aram se Savasana. We deserve a nice, beautiful Savasana. I think this target that we have is a very achievable target. इसमें हमें कहीं पे भी कोई भी ज्यादा तनाव नहीं हो रहा है.
धीरे धीरे इसमें हम और भी कुछ स्टेप्स अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और हम और भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। जिन लोगों से नहीं होता है उन लोगों को जितना होता है उतना ही करना है। रिमेंबर, लिसन टू योर बॉडी। बस enjoy your savasana। शवासन के 2 नियम याद रखोगे तो ही शवासन कर पाओगे। अगर आप बैठ के करना चाहते हैं बैठ के भी ले सकते हैं। तो मतलब डेड बॉडी, डेड बॉडी जैसा आसन। डेड बॉडी में क्या होता है, कुछ मूवमेंट नहीं, कोई फीलिंग नहीं। डेड बॉडी चेयर पे बैठ के भी हो सकता है और डेड बॉडी पलंग पे भी हो सकता है, कहीं भी आप कर सकते हैं। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए जमीन पे, आंखें बंद। बस ये 2 नियम का पालन करेंगे, बाकी सारा काम जो है वो अपने आप को। फोर्सफुली माइंड को बुलाने की कोशिश मत कीजिए। जब भी ऐसा लगता है कि माइंड घूमने चला गया है, धीरे से उसको वापस बुला लीजिए। डोंट बी वेरी हार्श विथ योरसेल्फ। अपने आप को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। सबका माइंड है, सबका माइंड सेम है और सबका माइंड घूम रह जाता है। तो आपका अगर गया है तो उसने कुछ गलत नहीं किया है। मन की वृत्ति है चंचल, और वो बस अपनी वृत्ति का ही पालन कर रहा है। Accept whatever, however it is। जब हमारे पास अवेयरनेस आएगी तब हम उसको चेंज करने की कोशिश करें। बट डू नॉट बी जजमेंटल, डू नॉट क्रिटिसाइज। दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ देंगे, हिल्स को एकदम ढीला छोड़ देंगे, एंकल्स को एकदम ढीला छोड़ देंगे। calf muscles, knees, thighs, your groins, your stomach area, पेट के अंदर के सारे मसल्स, सारे ऑर्गन्स सबको एकदम रिलैक्स कर दीजिए। Relaxing your chest, your heart, listen to your heartbeats. Hands, your fingers, your elbows, your shoulders, fully relaxed. Your neck muscles, your facial muscles, completely relaxed. चेहरे पे कहीं पे भी कोई भी झुर्री या wrinkles न रह जाए। Check, check your eyelids, check your forehead. Loosen, loosen, loosen more. हर एक पल लूज करते जाना है। वापस नेक्स्ट मोमेंट में वो वापस आ जाता है, उसको वापस लूज करते जाना है। एकदम ग्राउंड पे छोड़ दीजिए। आप चाह कर भी अपने बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। Watch yourself as an external entity। बाहर से बैठ के आप अपने बॉडी को देख रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। बॉडी में सारे मसल्स एकदम रिलैक्स, कहीं भी कोई भी तनाव नहीं।
Let go. Let go all the strain. हाथों से पैरों से वाइब्रेशंस बाहर निकल रहे हैं, सारी नेगेटिविटी सारा स्ट्रेस बाहर निकल रहा है, इसे जाने दीजिए. Slowly wiggle your hands and your legs, fingers को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, धीरे से आराम से. interlock your hands above your head and stretch up. पैरों को नीचे की तरफ, हाथ को ऊपर की तरफ. extend your spine. spine को अच्छे से खींचना है, खींचना है nicely. नाभि से नीचे की ओर आपका बॉडी नीचे जा रहा है, ऊपर का बॉडी ऊपर की ओर आ रहा है. एंड धीरे से रिलैक्स, हैंड्स इन टी पोजीशन, folded from the knees and side twist. Twist to your left, to your right. आराम से एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, एक एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी. धीरे से change sides towards your right. आराम से hold on nicely. Enjoy the moment. Stay over here. Repeat it once again. Towards your left, towards your right. Slowly turn to your left side and rest in child position. Squeeze yourself. Just like a child is in the mother's womb. Squeeze as much as possible. Slowly taking the support of your hands, come into sitting posture. Take your meditative posture. आंखें बंद ही रहेगी. शवासन के बाद कोशिश कीजिए कि आंखें बंद रखें. जब तक हमारी प्रेयर्स नहीं कंप्लीट होती है तब तक आंखें बंद रखिए और देखिए इसका जादू आप जब करेंगे तभी आपको पता चलेगा. और उसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आप आंखें खोलेंगे तो यू विल फील द एनर्जी इन योरसेल्फ. सो ट्राई. कोशिश करेंगे, करेंगे, मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ, तब तक आपको पता नहीं चलेगा. सो लेट्स टेक 3 भ्रामरी. आंखों को, कानों को कवर करेंगे, मुंह बंद रख के तीनों बार. Hands in Namaste, Atmanjali Mudra. गायत्री मंत्र लेंगे. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturnvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे, शोल्डर्स को पीछे की ओर खींचना है, आंखें बंद की है, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से फॉरवर्ड बेंडिंग, अपने आप को पूरा नीचे भूमाता के चरणों में समर्पित कर दीजिए। शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन जहां तक पहुंच सके वहां तक छोड़ दीजिए, उसको पूरा ढीला छोड़ दीजिए। परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं, सूरज देवता के चरणों में हमारा शीश झुका रहे हैं। हे प्रभु, हमने हमारे संकल्प के हिसाब से आज के 21 सूर्य नमस्कार को कंप्लीट किया है। We have completed our 21 सूर्य नमस्कार्स. Now you bless us with your energy. Feel the energy coming in your body. Feel the blessings on yourself, on your body, and grab this energy and come up with full confidence. पूरा ऊपर सीधा धीरे से rub your palms, जोर से अच्छे से rub nicely and making a cup of your hands, palms. Cover your eyes. लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से गर्दन को नीचे झुका के slide your hands on your entire body. पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे and नमस्ते, thank you for joining. एक चित्कारी ले लेते हैं. Remember the rule, हाथों को अगर सैनिटाइज करने की जरूरत है तो सैनिटाइज करके यूज कीजिए. And a nice shikari to cool down our body. Have an option of taking the pranayam also during this period, and I think we have our doctor with us, Divyesh. Dr. Divyesh जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो please unmute yourself. Hello, yeah, ma'am. Yes. Good morning. Yes. Yeah. Good morning, sir. Good So morning. over to you and for our special health tip of the day. Yes, I have observed your yoga session also. It was so wonderful and nice. Thank you, At least we feel so much of freshness in the air also, and in our soul and mind also. So my special health tip is like what તમે आप जो योगा सेशन चला रहे हैं उसमें ही वो आ जाता है कि when you do सूर्य नमस्कार and yoga, the अपने बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाता है, डाइजेशन पावर बढ़ता है, वेट लॉस होता है, डायबिटिक कंट्रोल होता है, हाइपरटेंशन कंट्रोल होता है. तो ऑल टुगेदर आप एक कॉम्बो पैकेज दे रहे हैं. जो लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं वो डेफिनेटली अपनी हेल्थ के साथ साथ खुद आई, किडनी, लीवर हेल्थ सब इम्प्रूव हो जाता है. तो आप जो पढ़ा रहे हैं या आप सेशन ले रहे हैं उसमें ही मेन और छिपा हुआ है. तो मेनली आई के लिए जो अदर एक्सरसाइज जो माना जाता है, आई रोटेशन करते हैं, फोकसिंग, डी फोकसिंग करते हैं, वो सब आप सूर्य नमस्कार में इंक्लूड है. जब आप ऊपर देखते हैं पूरा रोटेशन हो जाता है. तो जो कांस्टेंट देखने का अभी का जो प्रॉब्लम है, ऑनलाइन एजुकेशन है या कांस्टेंट एक ही वर्क डिस्टेंस पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें हमारा आई मसल एकदम से वो
फ्रीज हो जाता है, उसको मूव करने के लिए फोकस डिफोकस एक्सरसाइज हम देते हैं। तो आप जब योगा सेशन करते हैं उसमें वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप जो योगा कर रहे हैं वो पूरी लाइफ टाइम करते रहे और अपना पूरा हेल्थ अच्छी तरह से बना रहे, सो आपका इवन एट एज ऑफ 60-70 आपका जो एनर्जी लेवल है वो यंग पेशेंट के जैसे, यंग लोगों के जैसा ही रहेगा। थैंक यू। ये Thank बहुत ही you. बढ़िया लेसन है, इवन फॉर अस Thank you आल्सो। very much, sir. Friends, Dr. Divyesh Shah, a big ophthalmologist, वो बहुत सारे उन्होंने इंटीरियर एरिया में भी आई थिंक कैटरेक्ट ऑपरेशंस किए हैं। जी दिव्येश जी, आपने कितने किए हैं? आपके नंबर्स बढ़ते रहते हैं तो हमें पता नहीं रहता है, आप बताइए। मैडम अभी तक मोर देन 50-60,000 से ज्यादा हो गए होंगे। अभी मैंने भी काउंट रखना छोड़ दिया है, बट ये इट इज ए ग्रेस ऑफ गॉड कि मुझे ये करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला। नहीं, बहुत ही नेक कार्य करते हैं आप, और खास करके इंटीरियर एरिया में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है वहां पे जाके आप इतने सारे ऑपरेशंस जी करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द जी needy people. So जी I जी really appreciate your gesture and the big help that you are doing towards the society. और डॉक्टर दिव्येश शाह बहुत ही अच्छे से सूरत में तो बहुत हेल्पफुल है सारे आई, अगर आपको किसी को भी आंखों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए। जी और सर, आज आपने एक बहुत अच्छी टिप बताई, क्योंकि मैं काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस फ्रॉम द आई पर्सपेक्टिव कभी सोचा नहीं था, और आपने ये जी पर्सपेक्टिव नया मुझे भी सिखाया है कि इससे हमारा आई रोटेशन होता है। सो यस, इट इज आल्सो गुड। सूर्य नमस्कार एंड योगा जो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं जिसमें हमारी आंखें घूमती है, it's good for the eye exercises also. That's a very nice perspective that you have given us. So I am unmuting all of you. तो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ है, तो विल स्टार्ट इट इमीडिएटली, ताकि जल्द से जल्द हमारा सेशन कंप्लीट हो सके। आंखों के रिलेटेड दिव्येश जी is a master, so if you have any questions related to your eyes, कई बार है ना ऐसे भी दिव्येश जी क्वेश्चंस आए हैं कि आंख जो है वीक है और एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, वो कहाँ तक सही है और किसके लिए अप्लाई होता है, वो थोड़ा सा आप बता दीजिए। आपका म्यूट है सर, आपका म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी, कैन यू लिसन नाउ? Yes, आई एम yes, ऑडिबल? yes, या sir. जी, तो जिनको ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है, जिनका आई प्रेशर ज्यादा रहता है, उनको फॉरवर्ड बेंडिंग या हेड डाउन पोजीशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आंख का प्रेशर बढ़ता है। तो जो लोग ज्यादा शीर्षासन करते हैं या हेड डाउन पोजीशन पे जिनका एक्सरसाइज आता है, उन पे आंख का प्रेशर बढ़ेगा, तो आई का प्रेशर की वजह से आंख की नस सूखने के चांसेस रहते हैं। जिनको ग्लूकोमा की तकलीफ है उनके लिए स्पेशली ये केयर लेने जैसा है। ओके, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है ग्लूकोमा का, तो ही ये आपके ऊपर लाइक अप्लाई होता है, बाकी लोगों के लिए ये नहीं है, राइट? नहीं है, जी हाँ, जी, हाँ जी। सो एब्सोल्युटली। ऑल एवरीवन एल्स कैन वेरी नाइसली डू। और किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। नीतल एक मिनट ना। यस, डॉक्टर साहब, मीन्स अभी मेरा बेटा 10 साल का है, और है ना 1 हफ्ते से उसको है ना मीन्स जो अगर वो टीवी देख रहा है, बुक रीड कर रहा है, तो अपने आप दोनों आंखों से पानी आ रहा है। तो ये नंबर लगने से होता है या ज्यादा स्ट्रेस लेने से, मीन्स आंखों में ज्यादा स्ट्रेस लेने से हो रहा है? मैडम, दो पॉसिबिलिटी रह सकती है। अगर टीवी नजदीक जाके देखता है तो उसको नंबर हो सकता है, और अगर उसको वो एकदम से स्टेयर करने की आदत है, या एकदम से आंख खुला रख के एकदम से ध्यान से देखता है, तो कई बार वो ब्लिंक करना भूल जाते हैं।
ब्लिंकिंग कम हो जाता है, उस टाइम पे ड्राइनेस बढ़ने की वजह से भी वाटरिंग हो सकता है। क्योंकि उसको वो आदत है, लेगो वगैरह अगर वो करने बैठा तो 2-2 घंटा वो है ना कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन से करते रहता है। जी, जी, वो तो भी एक उसका ब्लिंकिंग आप बढ़ा दीजिए, ब्लिंकिंग ओके। पर्पसफुली थोड़ा ब्लिंकिंग रेट बढ़ाएँगे, तो हुँ, आई थिंक द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। और अगर ओके, वो देखने में आप रूटीनली आप देख लीजिए कि आपको घड़ी के फिगर्स दिखते हैं, उसको नहीं दिखते हैं, तो दैट मे बी रिलेटेड कि उसको नंबर हो सकता है। नंबर्स। तो थैंक यू, आप चेकअप करवा सकते हैं। जी, थैंक हेलो नितल, Yes, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग मैडम, मॉर्निंग। हाँ। या हमें कभी कभी फीलिंग होता है कि जैसे आईज पे किसी ने बड़ा सा स्टोन रख दिया हो, तो उसके जी। लिए हमें क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मैं समझता हूँ आप हैवीनेस की बात कर रहे हैं, आई पे बहुत भारीपन लगता है, ऐसा यस, ऐसी बात यस। है। तो पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि वो आँख में ही है या आपका हेडेक या सर भारी रहता है और उसकी वजह से आई का हैवीनेस लगता है। ज़्यादातर देखा गया है कि हैवीनेस अगर कंप्लेन है तो उनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा रह सकता है। दूसरा ये सब पॉसिबिलिटीज़ में उनको माइग्रेन है, आँख का प्रेशर ज़्यादा रहता है, ग्लूकोमा है, ये सब की वजह से भी हैवीनेस ऑब्जर्व किया जाता है, मिलता है कई बार। तो जो जैसे स्टोन फीलिंग होता है आईज पे, तो उसके लिए जी। स्पेशली हमें कोई आई ड्रॉप या तो फिर कोई एक्सरसाइज क्या करना चाहिए? जी, आपको अगर स्टोन फिलिंग यानी स्टोनी हार्ड जैसा लगता है, तो आपको एक चेकअप करके आई का प्रेशर सब चेक करवा लेना चाहिए। अगर अगर फैमिली हिस्ट्री में ग्लूकोमा है, आपके मॉम-डैड को ग्लूकोमा रहा था, ऐसा कुछ है, तो आपको एटलीस्ट आई का प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। बाकी आप रूटीनली टियर सब्स्टिट्यूट डाल सकते हैं, जो स्टोनी फीलिंग होता है उसको वो लुब्रिकेट कर देता है। तो रिफ्रेश टियर्स या टियर्स प्लस या ऐसे ड्रॉप्स आते हैं, जो आपको सूदिंग रखने में हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन कई बार वो ड्रॉप्स डालने की वजह से जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो मास्क ही रहता है, वो छिपा रहता है। तो एटलीस्ट आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस फॉलो करके फिर ये करना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी। थैंक यू निताली। welcome dear, welcome. सर इसके अलावा लाइक जैसे चेतना जी ने भी बोला था कि आंखों से पानी निकलना, आंखों से पानी निकलने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो कैन यू जी, जस्ट इलेबोरेट ऑन दैट बिकॉज आई आल्सो हैव दैट कि कई बार पानी निकलता है व्हिच आई नेवर टुक इट सीरियसली, सो इज इट समथिंग टू वरी अबाउट? जी, नहीं, आँख में अगर वाटरिंग की कंप्लेन है, तो ज़्यादातर वो सरफेस प्रॉब्लम होता है। सरफेस प्रॉब्लम यानी ड्राइनेस है, कुछ फॉरेन बॉडी है, अगर आँख में नेत्र कील हो गए हैं, कॉन्क्रीशन है, ऐसे जो सरफेस रिलेटेड इश्यूज़ है, उसमें वाटरिंग का कंप्लेन रहता है। इवन एलर्जी है वो सब में। लेकिन कई बार ये मिसबिलीफ है कि आँख में पानी निकलता है, लोग समझते हैं वो ग्लूकोमा है। आँख का प्रेशर बढ़ता है, तो बोलते हैं कि आँख का पानी जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। आँख में रूटीनली नॉर्मल रिफ्लेक्स वाटरिंग होता है, वो नॉर्मल ही है। और हेवीनेस है, अगर आँख का प्रेशर ज़्यादा है या हिस्ट्री है, तो आँख का प्रेशर चेक करके फिर आगे वर्कअप कर सकते हैं। जी, एंड अभी कॉमनली मैडम देखा गया है कि बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा वर्क करते हैं, जो अभी मेरा बात हुआ, तो उसमें भी कई बार वाटरिंग का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो एकदम से एक फोकस रख के वर्क करते हैं, ब्लिंक कम करते हैं, ड्राइनेस होता है, तो देन दे गॉट वाटरिंग आल्सो। जी, और एक सवाल था डॉक्टर साहब मेरा कि ये ना मेरा लेफ्ट आई में ना सिलेंडरिक नंबर जो बोलते हैं वो है, तो मीन्स लेजर टेक्निक अभी वो जो निकला है वो इफेक्टिव है मीन्स उसके लिए, या सिर्फ इट्स हाई फॉर हाई पावर रहेगा तो उसके लिए इफेक्टिव? नहीं मैडम, आप अप टू 2.5 डायोप्टर सिलेंडर है, तो आप लेज़र से निकलवा सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी, यस उषा जी, आप अपना अनम्यूट करके बोल I'm सकते 70
यस तो मैम, उसके यस। कैटरैक्ट के लिए अपन हम क्या कर सकते हैं? अगर डेवलप नहीं होना है तो उसके एक्सरसाइज करना चाहिए या लेट अरेस्ट करना चाहिए, या कैटरैक्ट बढ़े तो फिर ऑपरेट के लिए सोचना चाहिए? मैडम कैटरेक्ट नॉर्मली एजिंग प्रोसेस के हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है, तो ज्यादातर वो आपकी डिफिकल्टी लेवल्स कितना है उसके ऊपर सर्जरी करने का डिसीजन लिया जाता है। अगर आपका रूटीन डेली वर्क में आपको प्रॉब्लम रहता है तो यू शुड गो फॉर द कैटरेक्ट सर्जरी, क्योंकि वो सर्जरी अभी बहुत ही रिफाइन हो गया है, अच्छी तरह से हो जाता है। इवन सेम डे आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। इवन इंजेक्शन भी हम लोग नहीं देते हैं, या सिर्फ 2 मिलीमीटर इंसिजन से पूरा सर्जरी करके वापस आप घर जाके टीवी देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स। इज ए नॉर्मल विथ एक्सपीरियंस एंड जरूरत नहीं है, द वेज आर वेरी क्लियर नाउ। जी थैंक यू, थैंक यू। जी जी। हेलो डॉक्टर। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी रात को ना एकदम पूरा दिन कुछ नहीं होता है और रात रात को एकदम से इचिंग होता है आई, तो उसको मतलब क्या रीजन है उसका? आप वर्क करते हैं, बाहर जाते हैं, ऐसा रहता है पूरे डे नहीं टाइम? नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ? और कभी ज्यादातर स्कूटर, हाँ जी, हाँ हाँ जी। कभी स्कूटर पे जाते हैं मतलब टू व्हीलर पे, और वो तो लेकिन वो तो गोगल्स और कुछ भी पहनते हैं, फिर भी रात को मतलब वो प्रॉब्लम होता ही है। इतना सा इचिंग, इतना ज्यादा इचिंग होता है। ज्यादातर शाम के टाइम पे इचिंग रेडनेस का कंप्लेन है, तो वो ज्यादातर ड्राई आई पेशेंट में देखा जाता है। आपकी आंखें अगर ड्राई हो जाती है तो हाँ पूरे हाँ। दिन वर्क करने के बाद शाम को वो रेडिश या थोड़ा थकान महसूस करने लगती है। यू कैन सिंपली पुट सम टीयर सब्स्टिट्यूट, तो आप रिफ्रेश टीयर्स या ऐसे कोई भी जेंटिल आई ड्रॉप ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। दूसरा ओके। इश्यू एलर्जी का हो सकता है। अगर आपका हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, या आपको कुछ एलर्जी की हिस्ट्री है तो एलर्जी हाँ, रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। जी। And we have with us over here जतिंदर सिंह कुंडी साहब, जो हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं। तो नमस्ते कुंडी जी। मॉर्निंग, नमस्ते जी, मॉर्निंग, नमस्ते डॉक्टर साहब, मॉर्निंग। नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। Yes, कुंडी जी, over to you. थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा है आज डॉक्टर साहब आए हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो मेरे कैटरेक्ट था, मैंने कैटरेक्ट की सर्जरी करवाई और वो लेंस डल गया, उसके बाद में ठीक दिखने लगा, पर उसके बाद में मेरे आंखों में पानी नहीं आने हटा। बहुत ट्राई किया, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, कॉम्बेटूर में भी दिखाया, यहाँ दिल्ली में भी, पंजाब में भी, तो किसी डॉक्टर के से मालूम नहीं पड़ा पे क्या प्रॉब्लम है। सो मैं जो अपने हेयर डाई करता था, कलर लगाता था, तो जी मेरे को फिर चंडीगढ़ में डॉक्टर है गरेवाल इंस्टीट्यूट, तो जी। वहाँ पे मैं गरेवाल इंस्टीट्यूट में गया, तो उन्होंने देखा मेरा, तो वो डॉक्टर साहब मेरे को देखने के बाद में कहने लगे कि आप ये आपकी जो हेयर डाई लगाते हैं ये आपको नुकसान दे रही है, ये आप इसको बंद कर दो तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो हेयर डाई पर ये लॉकडाउन में, तो उसके बाद में फिर मैंने हेयर डाई बंद कर दी, और मेरे को कभी पे भी टीयर जो आर्टिफिशियल टीयर मैं डालता था दिन में 3 बार भी, अभी वो एक बार भी नहीं जरूरत पड़ती। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी मे बी किसी को सूट करती है तो ठीक है, बट इट्स ए वर्स, इसके वर्स से वर्स इसके परिणाम आते हैं, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। जी जी, आप बहुत आपने सही बात बोली है। कभी वो एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ जी। तो आपका हेयर डाई आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए और बार बार बदलना नहीं डॉक्टर चाहिए साहब, अगर आई हैव आप सिलेक्टेड सेफ है। मोर देन 100 टाइप ऑफ हेयर डाइज। मैं फॉरेन से भी जाके, स्किन स्पेशलिस्ट से भी जाके, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में, यूएसए में, सभी में जाके वहाँ पे जो हेयर स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ से भी जाके लेके आया,
पर वो नहीं सूट करते थे। एक जी थोड़ी देर सूट करते थे, 1 महीने के बाद में फिर दोबारा वो हो जाता था। बट एक अपने जी आप को मन में, ये तो अपने मन को ही समझाने की बात है, मैं यंग हूँ। यंग तो अंदर जी से जी होना जी चाहिए जी ना। अगर हेयर आपके ग्रे हो जी जाए तो यंगनेस तो जी ये नहीं है वो आप बूढ़े हो गए। अंदर से अरे, अगर आप स्ट्रांग है तो फिर कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जी लॉकडाउन हुआ तो मैंने फिर छोड़ दिया सारा। हाँ जी। जी 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 जी। काफी लोगों का हेल्थ अच्छा हो गया है सर लॉकडाउन के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। घर का Yeah, खाने we को मिला है और योगा सेशन बढ़ गए थे। अच्छा रहा, बहुत हाँ अच्छा जी, रहा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, we have gone more towards the nature. Yes, चंद्रकांत सोनी जी, yes, हाँ। welcome. आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, welcome. Yes, your question. गुड मॉर्निंग मैम। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। मेरे को शुगर बीपी गुड नहीं है, मॉर्निंग। फिर भी आंखें भारी भारी रहती है, तो क्या कैटरेक्ट हो सकता है? हाँ मैडम, आपको ब्लड प्रेशर का नहीं है। नहीं है, फिर भी आंखें भारी रहती है, वो रेगुलर प्रॉब्लम। हाँ जी, तो हाँ जी। कैटरेक्ट हो सकता हाँ, है? तो आपको हो सकता है। हाँ, आपको अगर ज्यादा है, B12 की कमी है, या थोड़ा नंबर है, सिलिंड्रिकल पावर है, सब में आई भारीपन लग सकता है। कैटरेक्ट की वजह से सिर भी दुख सकता है? ज्यादातर नहीं होता है मैडम। कैटरेक अच्छा। अगर एडवांस स्टेज में हो जाता हाँ। है और उसकी वजह से आंख का प्रेशर अगर बढ़ता है तो भारीपन लगने लगता है। अच्छा। one more question, डॉक्टर सर। जी जी सर जी। मैं चंद्रकांत सोनी हूँ। 2005-6 के अंदर मैंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया था। तो जी अभी जरूरी है कि कराना चाहिए? अभी तो नॉर्मल है मेरी आंखें। आपको सर 1-2 साल पे एक चेकअप करवा लेना चाहिए। वो कैटरेक है, वो एक पार्ट है, बाकी सब रेटिना चेकअप है, बाकी आई दिखता है प्रेशर। सब है। मैं कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट भी करता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ। चश्मा ऐसा नहीं जी चश्मा भी नहीं है, मेरा चश्मा भी नहीं है, तो जी करवाना जरूरी है, ऐसा बोल रहा हूँ। एब्सोल्युटली एकदम से जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव नहीं, है, नहीं है, वो नहीं है, कोई चीज कोई नहीं है। कुछ नहीं है, नहीं नहीं, ठीक कोई है चीज तो नहीं। फिर। अच्छा। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि आपके कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान बहुत सर चेकअप हो जाता है। जी जी यस, हाँ, बाकी तो 15 साल हो गए। 15 साल हो गया मेरे को। हाँ जी थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। Sir, यहाँ पे I would just like to ask a general question. Normally जैसे डेंटिस्ट के पास हम हर 6 महीने में जाना चाहिए ऐसा कहते हैं, तो जी आंख का जो चेकअप होता है वो कितने टाइम में रेगुलर करवाते रहना चाहिए, कितनी एज से करवाना चाहिए? आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज मैडम, क्योंकि 40 इयर्स के दौरान ही ज्यादातर वास्कुलर प्रॉब्लम्स है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, वो सब प्रेसिपिटेट होते हैं, यानी जिनको होना होता है वो उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से वो आना चालू होता है। तो वी रेकमेंड कि 40 के बाद आपको एटलीस्ट साल में एक बार चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि में नजदीक का जो रीडिंग का पावर भी बदलता रहता है। इवन कैटरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कई लोगों को अभी तो 45-50 की एज पे भी कैटरेक्ट डायग्नोसिस होता है, तो वो सब साल में एक बार चेकअप करवा ले तो वो। जी हाँ जी। और सर जैसे जो नंबर्स होते हैं वो जो डेवलप होते हैं, तो नॉर्मली ऐसे जो स्पेक्स की दुकान होती है, चश्मे की दुकान होती है, वहां पे वो लोग टेस्ट करते हैं कि कितना हाँ आपका नंबर है। वो कितना एक्यूरेट होता है, वहां पे करवाना चाहिए कि वी शुड गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट टेस्टेड? व्हाट वुड यू रिकमेंड? आपको डॉक्टर के पास करवाना चाहिए, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम नंबर के, जैसे यंग पेशेंट है तो हम लोग कई बार टीपा डाल के उसको आई मसल्स को पैरालाइज करके नंबर का चेकअप करते हैं, और 40 के बाद के जो एज ग्रुप है उसमें दूसरे सर ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, वो सब भी साथ में डायग्नोस हो जाता है। ज्यादातर माइनर मॉडिफिकेशन के लिए आप नियर बाय ऑप्टोमेट्रिस्ट से करवा सकते हैं, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बार होता रहना चाहिए, वो मैंडेटरी। जी
बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। Hello, ma'am. Hi. 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 Hello. Ma'am, I have one question to doctor. Yeah. Please. Hello, please. doctor. Hello. Good morning. Sir, I am doing a service. So Yeah. I'm doing a service. So for जी. service, I used to travel like by train or by car. तो मेरा वो traveling तो होता ही है. So बीच में क्या हो गया था, तो dust allergy हुआ. Then and the eyes पूरा है ना red हो गए. Then I gone to doctor and he had given the eye drop. So it had been cured. Later on कभी कभी क्या हो जाता है, मेरा eyes है ना कभी कभी red हो जाता है, फिर next day correct हो जाता है. तो जी. it could be the problem of a day or two. तो वो क्यों ऐसा, like वो कुछ precaution मैडम, लेना है या कैसे करना? या आपको अब फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स में है तो आपको ज्यादातर ड्राइनेस का इश्यू हो सकता. यू कैन रेगुलरली पुट सम आर्टिफिशियल टीयर्स, जेंटिल या ऐसा रिफ्रेश टीयर्स जैसा ड्रॉप्स कोई भी आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं एंड सी वेदर इट इज हैपनिंग इन द सेम मैनर और नॉट. अगर वो करेक्ट हो जाता है देयर इज नो नीड. अदरवाइज आपकी आंख अच्छे क्लीन पानी से लेनी चाहिए तो एलर्जन लोड कम हो जाता है. तो ये प्रॉब्लम. यस मैम. इज इट क्लियर मैम? अच्छा, ओके. Yeah. मीन्स मुझे वो आर्टिफिशियल ये लगाना चाहिए, यानी रोज लगाना हो ना, या वीकली सम ट्वाइस या हाँ, जो रोज 2-3 बार यूज करना है. यो रोज 3 times एटलीस्ट यू कैन यूज इट. जेंटिल आई ड्रॉप आता है अल्कॉन कंपनी का, दैट इज वेरी गुड. यू कैन यूज इट. ओके. ओके डॉक्टर, थैंक यू. या थैंक यू. डॉक्टर साहब, एक मेरा क्वेश्चन है जी कि सर. आप लेजर सभी करते हैं, तो जी. मैंने बहुत से डॉक्टर्स देखे हैं जिन्होंने गॉगल्स लगाए हुए हैं, जैसे आपने भी लगाए हुए हैं. जी. तो ये जो लेजर कितना अच्छा है लेजर करवाना, अगर जी. करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या गॉगल्स या जो आपन जैसे लगाए हुए हैं, ये अच्छा है लगाना या सेफ? व्हाट इज द सेफ? लेसिक सकते हैं जब की एज ग्रुप है. एम आई ऑडिबल मैम? हाँ हाँ हाँ. Yeah. सो जो लोग यंग है जिनको एटलीस्ट रीडिंग ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती है, दे आर द मोस्ट फेवरेबल, दे आर इन मोस्ट फेवरेबल पोजीशन, क्योंकि उनको फिर टोटली फ्रीडम मिल जाता है स्पेक्टिकल से. अगर वही लेजिक सर्जरी आफ्टर 40 करते हैं तो एनी ऑफ द वन पावर विल रिमेन. सो आप दूर का नंबर निकाल देते हैं तो रीडिंग के ग्लासेस कुछ बच जाते हैं. तो वी आर एट द एज ऑफ आफ्टर 45 47 years. अभी हम लोग नहीं करवा सकते, या तो हम करवाते हैं तो एनी वन ग्लास विल रिमेन फॉर अस. सो देयर इज एज सच भी आपको स्पेक्स कैरी करना पड़ता है. तो वी जनरली डोंट गो फॉर द लेजिक. बट दूसरे सर्जरीज है जो हम सर्जरी कैटरेक्ट सर्जरी के जैसे ही सर्जरी से वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर सकते हैं जिसमें रीडिंग के पावर भी निकल जाते हैं. ओके. जी. जी. जी मैडम. और किसी का और कोई क्वेश्चन बाकी है? Good morning, doctor. Morning. Morning. Actually, I want to ask that whole day we are working on a computer PC, and जी. after that, when we come to home, then we are watching TV or mobile. So, जी. in regular practice, what care we have to take for our eyes? रश्मि जी, आप अगर कंप्यूटर पूरा दिन यूज करते हैं तो देयर आर फ्यू टिप्स फॉर द कंप्यूटर यूजर्स कि जो लोग कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं उनका ब्लिंकिंग रेट कम रहता है, तो आप ब्लिंकिंग रेट ज्यादा रखें. दूसरा, स्क्रीन लेवल है उसको थोड़ा आई लेवल से नीचे रखें, एटलीस्ट 10-15 डिग्री.
अवॉइड द ब्लोअर एक्सपोजर। तो आप एसी का फैन है वो जरा साइड पे रखे, डायरेक्ट आंख पे आता है ऐसा मत रखिए। एंड यू शुड हैव सर्टन डिफोकसिंग ऑल्सो। सो आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो 20-25 मिनट के बाद एटलीस्ट 15-20 सेकंड दूर आप बियॉन्ड 6 मीटर डिस्टेंस आप अगर देख पाते हैं तो देर विल बी सम रिलैक्सेशन टू द आई मसल्स ऑल्सो। तो इतने टिप्स है इसमें आपका अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा, आई थिंक सो। Okay, and what about mobile? How much time we can watch on mobile? And is there Sir, any same. rule? As such, it is like not specifically written कि आप नहीं ज्यादा यूज नहीं कर सकते, लेकिन रेडिएशन आपने सुना ही है कि मोबाइल रेडिएशन है वो सब अपने आसपास ही रहता है। तो जितना आपका जरूरी नीडफुल है उतना आप मोबाइल यूज कीजिए। एंड सेम ऑनलाइन जो भी कंप्यूटर यूजर्स के लिए जो अप्लाई होता है वो मोबाइल यूजर्स पे भी अप्लाई रहेगा। तो वो भी एक ध्यान रखने की बात है। Okay, thank you, doctor. जी, थैंक यू। एक मुझे सवाल है सर। जी आया मैम। हाँ, एक्चुअली मेरे को स्पेक्ट है, मैं स्पेक्ट पहनती हूँ, तो चश्मा भी पहनती हूँ और मैं लेंस भी पहनती हूँ। पर कभी क्या होता है कि मैं लेंस पहनती हूँ तो मेरी आंखें थोड़ी लाल हो जाती है, तो मतलब क्या हो सकता है? या तो फिर वारंटी हो मैडम, और हाँ, आपको अगर कॉन्टेक्ट लेंस से रेडनेस रहता है तो अगर लेंस लंबे टाइम से यूज करते हैं तो वो लेंस पे प्रोटीन डिपॉजिट फॉर्मेशन हो जाता है। तो कई बार वो लेंस इटसेल्फ कैन गिव यू प्रॉब्लम। या तो आप लंबे टाइम से यूज करते तो आपकी आंख में कुछ एलर्जी के जैसे चेंजेस हो जाते। तो आप जब लेंस लगाते हैं तो थोड़ा पहनने के बाद आपकी आंख रेड हो जाती है, ऐसा रहता है। तो यू कैन चेंज द मटेरियल ऑफ द लेंस। तो जैसे एक मटेरियल है तो दूसरे मटेरियल पे शिफ्ट कर सकते हैं, या तो डिस्पोजेबल करते हैं डेली वेयर से डिस्पोजेबल पे। एंड सम ड्राइनेस आल्सो कैन गिव यू द सेम प्रॉब्लम। तो टीयर सब्स्टिट्यूट ऐड कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। और बेटर क्या होता है, मतलब कि लेंस पहनना अच्छा रहता है? कितने घंटे तक पहन सकते हो अगर है तो पूरे दिन में? जनरली आपको 6 is a good period to have it. Work Indian weather condition is very different from the rest of the world. We have more dusty and high atmosphere, sunlight exposure ज्यादा रहता है, तो 6-8 घंटे पहन सकते हैं। बाकी आप घर पे जाके निकाल के स्पेक्स पहन लीजिए, that will be fine. जी। ओके ओके, थैंक यू। मैंने एक्चुअली है ना एक बार आई मतलब कि आंखों से नंबर निकालने की कोशिश की थी, पर जो आई हॉस्पिटल जो है ना अडाजन में, डॉक्टर नवी कॉलेज के पीछे, उसने ये बोला कि आपको आंखों का पर्दा जो है ना वो स्टेबल, मतलब कि अगर नंबर होता है ना तो ही आप आंख के नंबर निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा बोला था उसने। तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि मेरी जो आंख है उसका जो पीछे का जो पर्दा है वो बहुत ही पतला है, तो मतलब कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है नंबर नहीं, निकालने की। पॉसिबल है मैडम, आप टीआर के करवा सकते हैं जिसमें ऐसे कोई एड ऑन रिस्क नहीं रहता है, पर्दे पे भी रिस्क नहीं रहता है। पीआर के इज वन प्रोसीजर वेयर वो वैक्यूम से आंख को होल्ड करना नहीं होता है, तो आंख को वैसे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं होते, तो आपका पीआर के प्रोसीजर से करेक्शन हो सकता है, नंबर निकल सकते हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू। आई गेस अभी किसी का और कोई क्वेश्चन बाकी है? I think everyone is done for the day, या आज थोड़ा जल्दी जाना है। और यस दिव्येश जी, आपका फोन नंबर और एड्रेस हमारे साथ थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिएगा, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सो तो अगर चेकअप करवाना है कुछ है तो दिव्येश जी का सूरत में क्लिनिक है,
और बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच टू डॉक्टर दिव्येश शाह जो हमारे साथ आज इतने सुबह सवेरे हमें मोटिवेट करने के लिए जुड़े। तो थैंक यू सो वेरी मच। स्पेशल थैंक्स टू डीजी जतिंदर सिंह कुंडी जी जो हमें हर रोज सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और सुबह सवेरे हमारे लिए जूम सेशन भी चालू करके देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे सारे मेंबर्स हमारे साथ जो सारे जुड़े हुए हैं उन सबको भी यस वी हैव कंप्लीटेड आवर 7th डे टुडे ऑफ आवर सूर्य नमस्कार चैलेंज। तो धीरे धीरे बहुत आसानी से देखिए ये कितना आसानी से चल रहा है। 21 दिन ऐसे करके हम कंप्लीट कर देंगे। जिसका बाकी रह जाता है, किसी दिन अगर आपका बाकी रह जाता है, सुबह नहीं हो पाता है, तो ट्राई कि आप दिन में भी अपना ये कंप्लीट कर दे। And you can always upload the photos and pictures on our Facebook group. Yes, thank you very much रूपाली जी। रूपाली जी आप भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। यस हमारे साथ मुक्ति जी भी है। मुक्ति जी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। पूर्वी बेन या पूर्वी बेन यू आर हियर अराउंड। काफी लोग निकल चुके हैं, काफी लोगों को थोड़ा काम होता है। यस मुक्ति हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। और कल सुबह एक्चुअली मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जो है वो पिंकाथॉन डे के लिए बिजी भी रहेंगे। बट प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन द सूर्य नमस्कार चैलेंज। ऐसा नहीं हो कि उस चक्कर में ये हमारा चक्कर आधा रह जाए। तो यस आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द पिंकाथॉन डे सेलिब्रेशन, लेकिन हम थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद ऑन टाइम विल बी देयर फॉर आवर सूर्य नमस्कार चैलेंज। यस सो यस थैंक यू एंड होप टू सी एवरीवन ऑन टाइम टुमारो। किसी और का और भी कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली भी दिव्येश जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। So see you tomorrow morning. Thanks everyone for joining with us. Thank you doctor for joining with us. Thanks dear everyone. Thank you. Nital ji, should I end this meeting? Yes. Okay, it is always inspiring for us. Okay ji, thank you Dr. Saab. Thank you ji. Namaste. Namaste.